Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. Let's start today's class. So, first of all, please tell me what we have learned in our previous class. So, students, we have learned visualizing a place by using our senses in our last class. So, today we will read and try to make pictures in your own imagination. Okay, so I will begin by reading the first page of the story. As I read, try to imagine what is happening. जैसे जैसे मैं रीडिंग करूँगी आपको क्या करना है वैसे वैसे अपनी इमेजिनेशन स्टार्ट कर देनी है. ओके स्टूडेंट्स, now look at this page. There is a story and the story name is Simple. And now look at this picture. There is a boy and the boy name is Steven. So now let's start reading and you start your imagination. Okay, imagine करना आपको start करना है. Okay students, now let's read. Stephen was a simple boy. He lived with his family on a small corn farm in the hills of America. The farm was very nice, but it was far away from town. There were no other houses in sight. Stephen had no brothers and sisters. Sometimes he had no one to play with at all. Okay students? So Stephen was a simple boy. Stephen कैसा boy था? Simple था, है ना? Now can you tell me where is the character? Where is the character in the story? So in this story the characters are, कहाँ पे दिख रहे हैं आपको स्टोरी characters? So in this story there is his family. किसकी family है? Stephen की family है. So now let's read. His family did not have much money as it hadn't rained in many months. Corn does not grow well without water. With very little corn to sell, the family had very little money. They could not afford to buy Stephen toys to play with. Now can you tell me where is the character? The character is in his field. And what does he or she look like? She like to play. There is a boy and the boy like to play. Now can you tell me what is he doing? He is playing. Now look at this picture. He is playing. Play कर रहा है ना with a rope. So students, can you tell me when you imagine, what do you imagine? Stephen was a simple boy. आपने एक boy को imagine किया होगा. The boy is young. एक यंग से बॉय को उसका स्वीट सा फेस है ऐसा इमेजिन किया होगा ना आपने. और वो एक प्लेन शर्ट पहने हुए था और क्या थे उसके ऊपर, आपने बोला था ना कि उसकी फैमिली है वो स्मॉल फार्म में रहती थी, नियर अ स्मॉल फार्म, और उसका उनका स्मॉल सा कॉर्न फार्म था. तो उन्होंने आपने देखा, आपने सिंपल से क्लोथ पहन रखे होंगे, उसने ऐसा इमेजिन किया होगा. ओके स्टूडेंट्स, नो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी sometimes he had no one to play with her. कोई भी उसके साथ प्ले नहीं करता था ना. So can you tell me by using your 5 senses what you see and what you think? So by using your senses I am thinking about a corn farm. जब आप मैम ने corn farm बोला होगा तो आप corn farm को imagine करना start कर दिया होगा ना आपने. सो आई वंस saw इन अ मूवी, कि जैसा कि आपने एक मूवी में देखा होगा कभी पहले, मैंने एक मूवी में देखा था और मेरी इमेजिनेशन ये थी, मैंने जब इसको रीडिंग करना स्टार्ट किया तो मैम ने देखा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. आई एम थिंकिंग अबाउट अ कॉर्न फार्म. जब मैंने कॉर्न फार्म को रीडिंग किया तो मैंने उसके बारे में थिंक किया. आई वंस saw इन अ मूवी, जो कि मैंने आप उसको मूवी में देखा था. ओके, इट इज़ विंडी एंड कूल. वो आप कैसा दिख रहा था मुझे, विंडी. और वहाँ पे ना जैसे ही मैंने इमेजिन किया कि मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ और मैंने
मेरी जो सेंस थी, मैंने ऐसा फील किया कि मुझे कूल फील हुआ, और मैंने स्मेल किया वेट सॉइल, जो कि वेट सॉइल जो कि कौन कहाँ होते हैं, फील्ड्स में ही होते हैं, और वो सॉइल में ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं। तो मैंने उसकी स्मेल, वेट स्मेल होती है ना सॉइल की, वो बहुत अच्छी स्मेल होती है। सो मैंने उसको इमेजिन किया। कैन यू नाउ स्टूडेंट्स completers reading? Next one. Now look at this picture. There is a boy, or boy with his father. Father के साथ है ना वो. So आई एम सॉरी सन। अब उसका फादर है, उसको सॉरी बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और टॉय को परचेज नहीं कर पा रहा था वो। इट विल रेन अगेन सून, दोबारा से रेन होगी। आई विल बाय यू ऑल द टॉयज इन द वर्ल्ड, मैं आपको जितने भी वो टॉयज हैं वर्ल्ड में वो सारे खरीद के दे दूंगा। हिज फादर टोल्ड हिम वन ड्राई स्प्रिंग डे दैट्स ओके डैड, उसने बोला कि कोई बात नहीं पापा, डैड कोई बात नहीं, आई विल बी फाइन विद वट आई हैव, मैं उसी के साथ खुश हूँ जो मेरे पास है। Stephen told his dad, even though he really did want the toys he saw the other kids with. Stephen was happy because he knew that he had people who loved him. स्टीवन के पास टॉयज नहीं थे, फिर भी वो हैप्पी था क्योंकि वो जानता था उसकी मदर हैं और फादर हैं, वो उससे बहुत प्यार करते हैं। For Stephen, that was much more important than the best and important expensive gifts. ये उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि उसकी फैमिली है, उसके मदर हैं, उसके फादर हैं, उसको प्यार करें, ना कि टॉयज़ इम्पोर्टेंट नहीं थे उसके लिए। एक्सपेंसिव टॉय तो बिल्कुल भी नहीं, एक्सपेंसिव होता है बहुत महंगा होता है एक्सपेंसिव। ओके, on days when he was not helping his father work, so on days when he was not helping his father work on the farm, Stephen would use his imagination to make even the most simple of objects come to life. उसने इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया था कि उसने एक दिन अपनी इमेजिनेशन से ही अपने टॉय बनाना स्टार्ट कर दिया था। Now look at this. So Stephen would sell an old cardboard box. उसने एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया, would become a great selling ship. उसका एक शिप बन सकता है। Stephen would sail it over the seven seas, fighting pesky pirates and huge sea monsters. कि उसका जो ये जो उसने शिप बनाई है वो कार्डबोर्ड को यूज़ करके वो इमेजिन करने लगा कि मैं एक ऐसी शिप बनाऊंगा जो मॉन्स्टर जो सी में सेल करेगी और वो मॉन्स्टर से भी फाइट करूंगा मैं। एन ओल्ड डिनर प्लेट वुड बिकम द स्टीयरिंग व्हील। उसका जो स्टीयरिंग व्हील्स उसके व्हील्स कौन किसको बना रहा था, वो प्लेट को इमेजिन कर रहा था, ये उसके स्टीयरिंग व्हील्स बन जाएंगे। सॉरी, स्टीयरिंग व्हील होता है जो घुमाने का होता है ना बोट का, ये वाला पार्ट ये बन जाएगा, उसकी प्लेट बन जाएगी। एंड ओल्ड डिनर स्टीवन वुड ड्राइव इट फास्टर देन एनी कार दैट हैड एवर गोन। कि वो एक उससे फास्ट कार रेडी करेगा जो कि स्टीवन वुड ड्राइव इट फास्टर, उसको फास्टर ड्राइव करेगा देन एनी कार हैड एवर गोन। जैसे कि कार चलती है ना फास्ट फास्ट, वैसे ही आप उसको एक शिप बनाएगा वो अपनी इमेजिनेशन के साथ और उसको ड्राइव करेगा। एन ओल्ड केन बिकेम अ सिल्वर स्वॉर्ड। और उसका क्या बन जाएगी, वो एक ओल्ड केन था, उसकी सिल्वर स्वॉर्ड बन जाएगी, उसकी तलवार बन जाएगी। स्टीवन वुड यूज़ इट टू कट अवे थिक प्लांट्स एंड वीन्स। और उससे वो क्या करेगा, थिक प्लांट्स को कट करेगा और उनकी जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं उनको कट करेगा।
as he trekked into the deepest jungle. जब वो जंगल में होगा तब कट करेगा. Even an old blanket would become a cape. केप क्या होता है? ये देखो क्लॉथ पहन रखा ना इसने, घुटनों तक जो क्लॉथ आपके फीट को टच करता है उसको केप बोलते हैं हम. लॉन्ग क्लॉथ होता है. तो वो उसका ओल्ड ब्लैंकेट को अपना केप बना लेगा. ही वॉज अ ग्रेट हीरो हु हैड सुपर फ्लाइंग पावर्स. और वो क्या बन जाएगा? ग्रेट हीरो बन जाएगा जिसके पास सुपर पावर्स होंगी. नेक्स्ट वन. एंड so the days went by. Stephen found ways to play and have fun by himself in whether he could find. He didn't cry, he did not pout, he made the best what he had. वो कभी भी क्राई नहीं करता था. he did not cry, उसने कभी क्राई नहीं किया. जो भी उसके पास था उसके लिए बेस्ट था. देखो ये बना रहा है ना, ये रेडी कर रहा है अपनी बोट कार्डबोर्ड्स के साथ. नेक्स्ट वन देखिए. देन वन डे इन लेट मे मंथ में लेट स्टीवन हर्ड द लाउड क्रशिंग साउंड ऑफ थंडर. उसको थंडर की साउंड सुनाई दी. इन द स्काई डार्क क्लाउड्स कवर्ड द सन. डार्क जो क्लाउड थे उन्होंने सन को कवर कर लिया था. स्लोली ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. और जल्दी ही रेन ड्रॉप्स गिरना स्टार्ट हो गई थी जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो ना. इट हैड फाइनली कम. वो आ गई थी, रेन आ गई थी. स्टीवन्स फादर एंड मदर रन आउटसाइड टू फील द रेन फॉल. जब रेन गिर रही है वो तो उसको फील किया और वो क्या कहाँ चले गए? अंदर चले गए. रेन देखो उसके फादर हैं और मदर हैं, वो इनसाइड अंदर चले गए हैं. सॉरी स्टीवन्स फादर look up at the clouds filling the sky. Stephen's father ran up and hugged his son. He knew that the rain meant the corn would finally grow. और रेन आएगी तो उसका क्या हो जाएगा? उसने अपने बेटे को गले से हग किया और बोला कि रेन आएगी तो कॉर्न भी अच्छी, कॉर्न का जो फसल है वो क्रॉप्स हैं वो अच्छी होंगी. और वो अपने बेटे को टॉय भी खरीद के दे सकता है. सो नेक्स्ट इन द पिक्चर देखो यहाँ पे उसने उसके फादर ने उसको हक कर रखा है. आई विल बी एबल टू बाय यू ऑल द टॉयज इन द वर्ल्ड माई सन. मैं अब आपको जितने भी आपके वर्ल्ड में टॉयज हैं उनको खरीद के दे सकता हूँ. हिज फादर सैड वाइल गिविंग स्टीवन अ ग्रेट बिग हग. उसको हक करके उसने ये बोला. नेक्स्ट वन. दैट्स ओके डैड, स्टीवन सैड. आई डोंट नीड टॉयज. मुझे टॉयज़ की ज़रूरत ही नहीं है. आई हैव यू एंड मोम. मेरे पास आप और मोम हो ना. एंड दैट्स ऑल. आई नीड टू बी हैप्पी. आई नो सन, आई नो. द रेन फेल एंड फेल एंड फेल एंड स्टीवन, हिज मदर एंड हिज फादर स्माइल्ड. वट अबाउट यू? आपने क्या किया? आपने स्माइल किया उनकी स्टोरी को सुन के. So students, can you tell me what happened in the story and what was the story setting? So the Stevens family was very poor. देखो यहाँ पे स्टीवन की फैमिली है वो पुअर है. It had not rained in many months, so the corn in their field did not grow. So they couldn't buy any toys for Stephen. इसलिए स्टीवन को खरीद के नहीं दे सकते थे ना टॉय. बट स्टीवन वॉज हैप्पी टू प्ले विद द थिंग्स ही फाउंड एट होम. जो भी उसके पास घर में चीज़ें थी वो स्टीवन उन्हीं के साथ हैप्पी था. ही इवन वेंट टू एनी इमेजिनरी इवेंट्स. फाइनली इट रेन्ड एंड स्टीवन्स फादर प्रोमिस टू बाय. देखो यहाँ पे रेन आई है ना, फाइनली रेन आ गई है और उसके फादर ने उसको प्रोमिस किया है टू बाय हिम टॉयज. स्टीवन सैड. और स्टीवन ने क्या बोला? ही डिड नॉट नीड टॉयज बिकॉज एज अ लॉन्ग एज ही हैड हिज फैमिली एंड फादर. सो he had his mother and father, he was happy. So the story is set in a small cornfield in the hill of America. Now look at this. यहाँ पे लिखा हुआ है that is written here America, in the hilly hills of America. So the story is set in a small cornfield in the hills of America. The farm was
वेरी फार अवे फ्रॉम द टाउन. और फार्म कहाँ था, दूर था ना. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट वन. सो स्टूडेंट, कैन यू टेल मी, how did Steven's imagination help him? And how did making pictures in our imagination help us to understand the story? कैसे imagination हमारी जो imagination करने में help करती है pictures. So now let's discuss the answer of this question. So Steven had no toys. Steven के पास कोई toys नहीं थे. But his imagination helped him change simple things into exciting toys. उसकी imagination से ही उसने अपने toy बना लिए थे. As we read in the story, जैसा कि हमने स्टोरी में रीड किया है ना, the pictures in our imagination kept changing wet soil changing to dry soil. wet soil थी, फिर वो dry में change हो गई थी. Steven sad face changed to happy one. और पहले Steven का face sad था, फिर वो happy हो गया. Making pictures like these in our imaginations help us feel like we are there. इमेजिनेशन ऐसे ऐसा फील होता है कि हम वहीं हैं, और ये स्टोरी को सुन के जब हम स्टोरी को लिसन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम वहीं हैं. कैन यू टेल मी, डिड यू थिंक द टाइटल सिंपल इज गुड वन फॉर हिज स्टोरी? सो स्टीवन इज अ गुड टाइटल फॉर दिस स्टोरी. What makes you think that? Steven is a simple boy. He is happy to be with his parents and finds joy in simple things. So the title is simple. The title simple is good for the story. So student, I hope it is clear to you. Next, move on. Thank you students. Thank you for watching this video. Thank you students for watching this video. In the next video, I will explain you your worksheet S2. Okay students.